Dear friends, very warm welcome to all of you in your very own Gyan Garden. Today we are going to learn how to be careful while making remarks, and in some conversational situation, if the person opposite you is making sweeping remarks, is generalizing something, okay, how can you express your reservations? आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, सबको एक ही तराजू में नहीं तौलिए। तो आजकल एक टेंडेंसी हो गई है कि अभी सब कोई कुछ न कुछ रिमार्क्स जो है, अपना ओपिनियन जो है वो बिना पढ़े लिखे, कभी कभी अधूरी जानकारी के आधार पर, कभी भावना में बहकर, ठीक है, पीपुल आर एक्सप्रेसिंग देयर रिमार्क्स, पीपुल आर okay making remarks, but most of those remarks may be offhand, most of those remarks may be ill thought, may be prejudiced, okay, ill timed, ill cared. So if someone making such remarks, you may say, oh, don't make flippant remarks. Flippant means tuchh. Don't make flippant remarks. Okay, so flippant remarks stands for ill thought, ill cared and ill timed remarks. Okay, half-baked people are making remarks, okay, without having read something, without having known people properly, they are making remarks. And such remarks, you know, are doing more harm than good. Okay, such remarks are alienating, you know, good people also. Suppose in case of a particular community, if I make a sweeping remark against any community, against any caste, against any religion, okay, there might be good exceptions, okay, but even good people, when they listen to such remarks, they feel alienated, they feel hurt. In such situations, okay, if someone making generalized remarks, how can you object? Let us learn. भाई सबको एक तराजू में मत तौलिए, इसके लिए क्या क्या हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम थोड़ा ये समझें कि ये सोशल मीडिया जो है, दिस सोशल मीडिया यू नो इज जस्ट लाइक ए नाइफ, ओके, एंड इफ यू नो दिस नाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ ए सर्जन, इट कैन क्योर द पेशेंट, इट कैन हील द पेशेंट, okay, it can heal the wound. But if the same knife is in the hands of some lunatics, okay, mad people, it may harm, it may, you know, cause injury. And that is why through this social media, you know, half-baked people, ill-informed people, they are inflicting injury, okay, on our society. They are scratching, they are raking up those wounds which have already healed. In my own humble way, I would like to say that Gyan Garden is committed to holistic learning, not prejudiced learning. Okay, so while making remarks, we have to be careful, we have not to generalize things, we have not to generalize events, we have not to generalize people. Now, coming to such expressions, first of all, let us see what are some common perceptions. Okay, generally people say in haste that Bollywood movies spread vulgarity. So it is a general remark. Bollywood movies spread vulgarity. Is it a wholesome truth? Is it complete truth? There may be, okay, there may be a lot of movies are there which have propagated, you know, obscenity, vulgarity, etc. But exceptionally, there are some serene movies also, there are some motivational movies also. So यहाँ आप कह सकते हैं कि नो,
all the movies are not the same. There are beautiful exceptions also. ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे? अब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि कैसे कहेंगे. ठीक है, डोंट मेक अ स्वीपिंग रिमार्क, ओके, और डोंट मेक स्वीपिंग रिमार्क्स अगेंस्ट द बॉलीवुड मूवीज और द बॉलीवुड स्टार्स. स्वीपिंग रिमार्क आप देते हैं, झाड़ू से बुहार दिया आपने सबको. ठीक है, जो अच्छे हैं बुरे हैं सबको. तो स्वीपिंग रिमार्क्स जो होते हैं वो हर्टफुल होते हैं, एंड वी शुड अवॉइड स्वीपिंग रिमार्क्स. ओके, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें या फिर दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं कि एक जनरल आपका कॉमन ये रिफ्रेन है, एक तरह से कहें, पीपल कॉमनली फ्राउन, और ये कॉमन रिफ्रेन है, मतलब एक नाक भौंसी कोड़ते हुए लोग कहते हैं कि अब पॉलिटिशियंस आर पार्टी हॉपर्स. जो नेता होते हैं पॉलिटिक्स में, वे इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से किसी और पार्टी में वो कूदते रहते हैं, जाते रहते हैं. वैसे लोगों को कहते हैं पार्टी हॉपर्स. पॉलिटिशियंस आर party hoppers. So it is a general impression. लेकिन is this impression absolutely true? No. There are some beautiful exceptions also. ऐसे भी लोग हैं who are known for their loyalty. Okay, वो एक ही पार्टी में रहते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं और वो पार्टी हॉपर्स नहीं है. तो आप यहाँ कह सकते हैं, मान लिया आप पॉलिटिशियन है, आपको बुरा लग गया और कोई किसी ने कह दिया कि भाई ऑल द पॉलिटिशियंस आर पार्टी हॉपर्स, तो आप कह सकते हैं कि नहीं भाई, डोंट पेंट ऑल द पॉलिटिशियंस विद द सेम ब्रश. एक ही ब्रश से सारे पॉलिटिशियंस को मत रंग दीजिए. डोंट पेंट ऑल द पॉलिटिशियंस विद द सेम ब्रश. ये कहने का आपका तरीका हुआ. एक ही तराजू पे मत तौलिए. ओके, सबके विरुद्ध एक ही तरह का रिमार्क्स, स्वीपिंग रिमार्क्स मत दीजिए, या फिर एक ही ब्रश से सबको मत रंग दीजिए. तो उसको कहेंगे डोंट पेंट ऑल द पॉलिटिशियंस और ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज और समथिंग लाइक दैट विथ द सेम ब्रश. ठीक है, क्लियर? नाउ द थर्ड एक्सप्रेशन, टू पुट इन द सेम ब्रैकेट. अब आप देख सकते हैं, जैसे ये है रिलीजियस पीपल आर ऑर्थोडॉक्स. यह एक जनरल इम्प्रेशन हो सकता है कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो प्रायः ऑर्थोडॉक्स होते हैं, थोड़ा रूढ़िवादी होते हैं, वो कम प्रोग्रेसिव होते हैं. लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता है. जो रिलीजियस लोग हैं उनका भी साइंटिफिक टेम्परामेंट हो सकता है और वे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं. तो यह भी एक जनरल स्टेटमेंट है. आप कह सकते हैं नो प्लीज़ डोंट जनरलाइज. ठीक है, आई एम डिवाउट पर्सन, ठीक है, बट आई हैव गॉट साइंटिफिक टेम्परामेंट, आई एम रेशनल ऑल्सो एट द सेम टाइम. ओके, आप कह सकते हैं कि डोंट पुट मी इन द सेम ब्रैकेट. डोंट पुट मी इन द सेम ब्रैकेट. उसी ब्रैकेट में मुझको भी मत रख दीजिए. तो ऐसे भी कह सकते हैं डोंट पुट ऑल द मूवीज इन द सेम ब्रैकेट. ठीक है, डोंट पुट ऑल द पीपुल इन द सेम ब्रैकेट. डोंट पुट ऑल द पॉलिटिशियंस इन द सेम ब्रैकेट. ठीक है, तो यह भी एक एक्सप्रेशन हुआ. आपको अगर ये कहना है कि भाई सबको एक जैसे नहीं है. और एक लास्ट में भी हम देखें एक्सप्रेशन, लंपिंग इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर. सबको बस एक ही तरह से लपेट करके बांध दिया. तो इट इज़ नॉट प्रॉपर. ठीक है, आपने अगर कह दिया थोड़ी देर के लिए कि ऑल द डॉक्टर्स आर मर्सिनरीज. बहुत सारे लोग डॉक्टर्स की जब बात होती है तो अधिकांश, और इसमें सच्चाई भी है, बट सभी डॉक्टर्स जो हैं वो मर्सिनरीज नहीं हैं. सभी डॉक्टर ऐसा नहीं कि पैसे के पीछे पागल हैं, अधिकांश हो सकते हैं. ठीक है, बट देयर आर गुड डॉक्टर्स, ओके, हु आर रियली ऑस्टेयर एंड हु आर नॉट फ्लीसिंग द पेशेंट्स. ऐसे भी डॉक्टर हैं, ठीक है, हु आर ट्रू टू देयर प्रोफेशन. तो आप कह सकते हैं कि यू शुड नॉट लंप entire group of doctors together. You should not lump entire group of doctors
टुगेदर, सभी डॉक्टर्स को एक ही में आप मत जो है वो बांध दीजिए, ठीक है, उसको लंप मत कर दीजिए। तो इस तरह से जो 4-5 एक्सप्रेशन है इसको आप वहाँ इस्तेमाल इसका कर सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं आदमी कोई जनरलाइज कर रहा है। जो ही आप जनरलाइज करते हैं, उस तरह का कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो उसमें जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें भी दुख होने लगता है। इसलिए while making remarks, okay, about some caste, about some community, about some particular person, okay, be careful and do not make flippant remarks, do not generalize, okay, and be careful so that you may not lose friends, you may not lose goodwill. So this is a small message from this Gyan Garden, and motto of the Gyan Garden, you know, is to contribute towards, you know, peace and towards, you know, brotherhood and towards happiness. Thank you, and I hope you have enjoyed this session. So please do subscribe to this channel Gyan Garden. Thank you.